Good evening, students. Today in mathematics we will start a new chapter named as probability. Okay, now I am not thinking that you have studied something in class 10 or something in class 11. We are studying this chapter from zero, from the starting. Now, first we need to understand when this probability comes, like probability concept is what and when it comes into act. Okay, now whenever we are doing some experiment or any practical day-to-day life situations, like for example, we have a box which is full of balls. We are drawing a particular ball, but before drawing a ball, we need to identify like what are the chances that out of 5 balls we get, out of 5 draws we get a red ball. Okay, how many red balls we can get? These are called chances of occurrence. So whenever this chances of occurrence word comes or chances comes, that means we are talking about probability. So if you check out the notes, you will receive the notes, please check out the notes. The first line what I have written, the mathematical analogy of chances of occurrence of anything is known as probability, and it acts whenever there is an experiment started. Some experiment or practical day-to-day life happenings we are doing. Simple example, we have cards. We have total 52 cards. We are drawing one card. Now we need to know the chances of getting an ace or getting a king or getting a red card or getting a black card. Then that is called probability. Okay. Now, so we understand whenever there is some experiment, going on, we need to understand the probability concept. There is a concept of probability comes into play. Okay. Now, with that, with respect to the experiment, the first thing which you need to understand is what is the sample space. Sample space hai kya? So I will not write everything whatever is there in the notes. I will discuss in short. Okay, there is the notes you have with you, all the notes, and you can read it from there. Now what is sample space? Sample space is that we are doing a particular experiment. What are all the outcomes which can come in that experiment? Okay, if I write all those outcomes within the braces, then that becomes a sample space. That means sample space is a set. Within the braces, with commas, I will write all the outcomes whatever is possible. Okay, so this is basically sample space. Now, next, how to find number of sample space? Ye thoda dhyan se sunna. Number of sample space, there are two ways to do it. Either you write all the outcomes, then you count number of outcomes, how many we have, 1, 2, 3, 4. Okay, and this is the one way to find the number of sample space. The other way of finding number of sample space is what? Is number of faces to the power number of throws. To the power number of throws. But again, these things work only if you are dealing with single item. These things will come across after some time. Okay. Now, let's talk about few examples. Like for example, tossing of a coin. एक coin को मैंने toss किया. Now, try to understand practical life. एक coin को मैंने toss किया. So, what are the possible outcomes we can have? मतलब क्या क्या आ सकता है? तो coin has only two faces. Either we can see head or we can see tail. We cannot see head and tail all together. Okay. So, what are the sample space? It can be head, comma, that means comma again, that means this is one of the outcome, and tail, this is another outcome. So, what is number of sample space? 1, 2, 2. Or, if you use this formula, coin has how many faces? 2. How many times I have thrown? 1 times. I tosses a coin. एक coin को toss किया, or tosses a coin once. 2 to the power 1 is 2. Okay, next, if you toss 2 coins. No, ये सुनना अच्छे से. Tossing a coin, एक coin को 2 बार toss किया. Tossing a coin twice or tossing 2 coins simultaneously. They are 2 different experiments in real life. मैं 2 coin को एक साथ फेंका और एक coin को 2 बार फेंका. These are 2 different experiments. Okay, but mathematically they are same. Why? Because the outcome which we see looks same. Like for example, मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया. जब मैं पहली बार टॉस किया, हेड आया. क्या ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया? नहीं, मेरे पास और एक कुछ आएगा, तब जाके टोटल आउटकम निकलेगा. ओके, और एक बार टॉस किया, फिर से हेड आया. तो ये पूरा एक आउटकम है, वन आउटकम. दिस इज वन आउटकम. Why? Because we are tossing a coin twice. That means we should have either pairs, head, tail head. If I toss 2 coins simultaneously, 2 coins को एक साथ फेंका, then we will see 2 pairs again, headed, 1 pair, not 2 pairs, 1 pair which contains 2 outcomes, headed, head, tail head. That means if we, this is
tossing one coin twice. And if I say tossing two coins, then also I will see this type of outcomes. So the outcomes look same. That is why in mathematics, those two different experiments of practical life are considered as single experiment in theoretical life. So what is the sample space here? We will have head. Now there is a particular way of writing this sample space. First we write both head, then we make one tail. Last वाला tail बनाया, आप पहले वाला tail बनाया, आप दोनों को tail बनाओ. Okay, so what is the number of sample space? We can count 4, or if you use this formula, number of faces by number of throws. A coin has 2 faces. How many times we have thrown? 2 times. So it is 4. Similarly, if we say, now I'm not going exactly with the theory here. Matlab theory exactly what alignment, I'm not doing the same thing, but I'm discussing whatever is there in the theory. Next, if I say tossing a coin thrice, एक coin को 3 बार toss किया, और tossing 3 coins simultaneously, 3 coin को एक साथ फेंका. Again, these two are single experiment, but they look different in practical life. Why they are single experiment? The overall outcomes will remain the same. एक coin को अगर 3 बार फेंकूंगा, है एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है, मतलब और एक आउटकम आएगा. तो दिस ऑल आर एक्ट एज अ सिंगल आउटकम. ये वह एक आउटकम, एक पॉसिबिलिटी है. ओके, सिमिलरली अगर तीनों कॉइन को एक साथ फेंका तो मुझे 3 चीज दिखेंगे, head or head tail head or whatever it is, but all 3 together considered as one outcome. So what is the way of writing the outcome? First you write head, then what do you do? Make the last one tail, then make the middle one tail. Okay, and then make the first one tail, then you make tail, last one head, middle one head, and the first one head. So these are the ways. If you don't go in this way, you try to miss out something. You will miss out something. So please do it in this way. So if I say number of sample space here, we can count there are 8, or if you don't want to count, you can use the concept. Number of face to the power number of throws. Number of face is 2. How many times we are throwing that coin? 3 times. So it is 8. Clear? Okay, next. Tossing of a dice. एक dice को toss कर रहा हूं. What is a dice? Dice होता क्या है? This is a dice. Okay, now इसमें थोड़ा हम brainstorming करेंगे. Listen very carefully. Dice में होता क्या है? 1 dot means 1, 2 dot means 2, 3 dots means 3, 4 dots means 4. Then similarly 5 dots means 5, and then one face we have 6 dots. That is 6. So total there are 6 possibilities. When I throw a dice, toss of a dice तो नहीं होता, throw of a dice होता है. When I throw a dice, या तो 1 dot दिखेगा ऊपर में, या तो 2 dot दिखेगा ऊपर में तो दिखेगा. So that is my outcome. या तो 1, 2. So what is sample space? 1, एक ही dice फेंका हूं, या तो 1 दिखेगा, या तो 2 दिखेगा, या तो 3 दिखेगा, या तो 4 दिखेगा, या तो 5 दिखेगा, या तो 6 दिखेगा. So total there are 6 outcomes. So what is number of sample space? 6, or number of face to the power number of throws. 6 to 1 is 6. You can do it in any way. Okay, now with dice there are many types of brainstorming can be done in different types of questions. Listen very carefully, and this is the reason why you're watching this video. कभी-कभी क्या होता है? Normally, if I talk about a normal die, it is white in color, and we have red dots or black dots. 1 dot considered as 1 number, 2 dots considered as 2 number. Like for example, we are doing a particular question. In this question, what is written? We have a dice, okay, where 3 faces are red in color and 3 faces are white in color. 3 face red color का है, 3 face white color का है. That means there is 1 dot in red color, 2 dots in red color, and 3 dots in red color. And there is 1 dot in white color. This is 1 red, 2 red, and 3 red. This is 1 white. Okay, and the back side, this is 2 white. और कौन सा फेस बच गया? ये बच गया. And this 3 white. So sometimes there is some tempering is done with the we can say dice. So in those cases where you can see in the question the dice which you are dealing with is not the normal die, then the normal sample space will also not work. You have to understand the question and you have to see what type of samples we will get here. So अगर ऐसा question है,
मेरे पास एक डाइस है जिसमें 3 रेड फेस है एंड 3 व्हाइट फेस है, तब मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड, 1 white, 2 white, 3 white. Because there will be 1, 2, 3 in red color and there will be 1, 2, 3 again in white color. They are 2 different samples, 2 different outcomes, 6 different outcomes. मतलब there are 1 of 2 different. One is red white one and this is white one. तो तब ये सब काम नहीं करता है क्लास. So these things you need to understand on your own by checking out the question. Okay? तो ये हुआ डाइस के साथ. अब हम करेंगे क्या? Throwing of 2 dice together. Next, if you see the PDF is there, throwing of 2 dice together or throwing 1 dice twice. Okay, एक डाई को 2 बार फेंका, तब क्या होगा? Throwing a die twice, एक डाइस को 2 बार फेंका, और throwing 2 dice together. तो ऐसे केसेस में क्या होगा? जब तुम 2 डाइस फेंकोगे, तुमने फेंका, एक में मान लो 1 पॉइंट है, एक में मान लो 4 पॉइंट है. इसका मतलब क्या? ये दोनों मिला के एक आउटकम हुआ 1,4. दिस इज 1 आउटकम. सो व्हेन वी dealing with 2 dice, the outcomes look like how they look like. First you need to understand. Now whenever we dealing with 2 dice, the outcomes, the way you will write, there is a particular thinking process. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is dice 1 and this is dice 2. What your job is, don't think randomly. Randomly नहीं सोचना है क्लास. हम क्या करेंगे? die 1 का 1 लेंगे and make pairs with dice 2. That means you have to write like this. 1, 1 एक पेयर हो गया. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ये हो गया. इसका मतलब क्या? फर्स्ट डाई में 1 गिरा है, सेकंड डाई में 1 गिरा है. फर्स्ट डाई में 1 गिरा है, सेकंड डाई में 2 गिरा है. अगेन फर्स्ट में 1, सेकंड डाई में 3 गिरा है. इन दिस वे. सिमिलरली अब ये 1 से मैंने ले लिया, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. अब 2 से स्टार्ट करो. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. सो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 and 2, 6. Similarly 3 से स्टार्ट होगा, 3, 1, 3, 2 and 4 से स्टार्ट होगा, 4, 1, 4, 2. 5 से स्टार्ट होगा, 5, 1, 5, 2, 5, 6. Then 6 से स्टार्ट होगा, 6, 1, 6, 2 and 6, 6. So how many sample space we have? 36 if we count. Now when you're dealing with any probability question where the sample space is huge, you don't need to write that sample space in set form. जैसे मैंने एक set format में लिखा है and then we have written number of sample space. तो set formats में हम तब नहीं लिखते हैं जब हमारे पास बहुत सारा sample space होता है, बहुत सारा outcomes होता है. In those cases we write only number of items in the sample space. So how to write? Then this formula is valid. Valid means this formula comes very handy. Okay, number of face to the power number of throws. There are 6 face in a die and we are throwing twice. That means total 36 outcomes we got. Clear? बात समझ में आ गया? अब इस चीज को लेके मैं थोड़ा बहुत और डिस्कस करना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर डीलिंग विथ अ पर्टिकुलर फेवरेबल आउटकम. Out of all the possible outcomes, okay, I am interested in one favorable outcome. What is that favorable outcome? That the sum is 8, for example, or the sum is 4. From all these outcomes, I am interested in those outcomes, that means those ordered pairs whose sum is 4. मतलब वो जो दो नंबर आए होंगे डाइस में, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट इनमें से मैं वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका सम 4 है. तो मैं कैसे करूं, इसको कैसे सोचूं? दैट थिंकिंग प्रोसेस आई वांट टू टीच यू. ओके, तो ऐसे करके सारा लिखने के बाद तुम सबको ऐड करके देखोगे. हाँ, 1 + 1 2, आउटपुट 4 नहीं होगा. हाँ, 1 + 2 3 होता है, 4 नहीं होगा. ऐसे नहीं करेंगे. तब हम क्या करेंगे? तब हम ऐसे लिखेंगे. Think about it. Start with 1. Okay, 1, 1 नहीं होगा, 1, 2, 1, 1, 1 + 1 नहीं होगा, 1 + 2 नहीं होगा, 1 + 3 हाँ होगा. तो एक हो गया 1, 3. 1, 4 नहीं होगा, 1, 5 नहीं होगा, 1, 6 नहीं होगा.
हो गया। अब 2 से स्टार्ट करो। 2,1 नहीं होगा, 2 + 1 3 होता है, 2 + 2 4 होता है, हाँ 2,2 होगा। फिर 2,3 नहीं होगा, 2,4 नहीं होगा, 2,5 नहीं होगा, 2,6 नहीं होगा। डन। अब 3 से स्टार्ट करो। 3,1 हाँ होगा, 3 + 1 4 होता है, 3,1 फर्स्ट टाइम में 3 गिरा, सेकंड टाइम में 1 गिरा, तो उनका सम 4 होता है। 3,2 नहीं होगा, 3,3 3,4 3,5 3,6 नहीं होगा। 4 से स्टार्ट करो। 4 तो पहले से आ गया, तो 4,1 तो बढ़ जाएगा, नहीं होगा। 5 बढ़ गया 4 से, 5,1 नहीं होगा, 5,2 नहीं होगा, 6,1 नहीं होगा। That means these are the 3 possible outcomes where the sum is 4. So whenever any outcome, any favorable outcome they are asking about, don't write all the sample space and then you check it out from there. No, you have to do it orally, लेकिन one by one, randomly नहीं। हाँ मुझे पता 3,1 3 + 1 4 होता है, वैसे नहीं सोचना है। तुम 1 से स्टार्ट करो, चेक करो, 2 से स्टार्ट करो, चेक करो, 3 से स्टार्ट करो, चेक करो, एंड वी डू इट इन दिस वे। I hope you understand, class. So these are the few examples of experiments which I have told you. And with respect to that experiment, I have discussed few sample space, how to write in set format, how to write in number of sample space. Okay, now let me see what I have written in the notes. You okay, sample space. Now, next is concept of cards. Cards को लेके कुछ बात करते हैं। Cards के बारे में मैं तुम्हें notes में दिख रहा होगा। There are total 52 cards. Out of 52 cards, what is there after the cards? Okay, special case. 52 cards are total we have. Total 52 cards. इसके बारे में समझना, हाँ. So when we say a deck of card, that means we are talking about 52 cards. Books में, questions में ऐसा लिखा होता है, deck of cards. That means there are total 52 cards. Now these total 52 cards are divided into 4 parts. Okay, 4 different parameters we have. One is called diamond. Okay, which look like this if you go to real life. Another is heart, which look like this. Another one is club, which look like this. Another is spade, which look like this. Kalapa. Okay, now these two are red in color and these two are black in color. And each set we have 13 cards. 13 diamond cards, 13 heart, 13 club and 13 spade. Now how there are 13 cards? We have ace of diamond, jack of diamond, king of diamond, queen of diamond, number 10, number 9, number 8, number 7, number 6, number 5, number 4, number 3, number 2. There is no 1. 1 नहीं होता. If you count, there is 13. Similarly, we have ace for heart, jack for heart, king of heart, queen of heart, 10 of hearts, spade for club, same for spade. Now, there are two special things you need to understand. Jack, king and queen are considered as face cards. And ace, jack, king and queen are called as honor card. Honor. That means these cards are given some honor. Okay. That means total how many face cards we have? We have 3 face cards for diamond. Similarly, 3 face cards for heart. 3 face cards of club and 3 face cards of spade. That means total face card is 12. ये सब याद रखना है. जरूरत है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो. फेस कार्ड्स कितने हैं? 12. एक सेट का 3 है. We have total 4 sets. 3 into 4 12. How many honor cards we have? 16. एक सेट का 4 honor cards है. Total we have 4 sets. तो 4 4 16. Okay. How many red face card we have? Red face card 8. Sorry, not 8, 6. Diamond is red in color, heart is red in color. 3 face cards है, 3 face cards है, 6. How many black honor card we have? So 4 honor cards of club and 4 honor cards of spade. So we have 8. I hope you understand how to discuss, how to deal with the cards. Okay. Now, what the problem a student face is not regarding these. These are actually class 10 basics. Class 11 and 12 में थोड़ा अलग होता है बेटा. Like so easily we can calculate the number of sample spaces, number of faces to a number of throws. Okay. Now there are a few questions where number of sample space we cannot identify in these by these shortcuts. Okay. Or sometimes number of sample space is basically not equals to total number.
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो टोटल नंबर के बराबर होता है, किसी क्वेश्चन में टोटल नंबर के बराबर नहीं होता है, समथिंग एक्स्ट्रा वी यूज दैट इज कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस। सो अब ऐसा कौन से स्पेशल केसेस है जहां पे मुझे कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस? सो वी विल डिस्कस दैट पार्ट राइट नाउ। Okay class, so now we'll go for those concepts where we need to use combinations. Now try to understand nicely. For example, we have, पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट लेके। We have a urn. Urn means a box or a bag which has 3 white balls, 2 red balls and 5 we can say black balls. Okay. अब यहां पे दो टाइप का एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट 1, ड्रॉइंग अ बॉल। दूसरा एक्सपेरिमेंट 2, ड्रॉइंग अ बॉल एट रैंडम। दो नहीं, एक्चुअली 3 टाइप का हो सकता है। और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। Okay, and experiment number 3, drawing 2 balls. यहां पे क्या होगा? Drawing 2 balls successively with replacement. ऐसा। अब देखो, हाँ, चीजों को समझना अच्छे से, मैं क्या बोलना चाहता हूं। डिफरेंस क्या है? A ball, 2 balls. Whenever in any experiment we are dealing with single item, एक कार्ड या एक बॉल, then there is no chances of combinations. Okay? In these cases, मैंने एक ही बॉल निकाला तो what is number of sample pairs equals to total number 10. 5 plus 3 plus 2 5. The total 10 balls, that the number of sample space is 10 balls. Total number of outcomes is 10. ठीक है? Maybe 1 white, 3 white है, 2 red है, 5 black है, उनमें से कुछ भी निकल सकता है। Total outcome is 10. Very simple when we are dealing with single item. But whenever we deal with multiple items, more than one item. Now again, multiple items के साथ deal करने का भी 2 तरीका होता है। One is this, another is this. Try to understand it nicely. Sometimes in the question it's written, these words are written at random. Yeah, successively without replacement. Successively with replacement. And sometimes when this word is written, तब तो बल्ले बल्ले मुझे word से पता चल गया क्या करना है। मान लो ये word ही नहीं लिखा हुआ है, ये word ही नहीं लिखा है, तब तुम कैसे समझोगे? ठीक है ना? तो बेसिक आइडिया ये होता है, अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में सक्सेसिव ड्रॉज मतलब पहला बॉल निकाला, उसके बाद तो दूसरा बॉल निकाला, तो ध्यान से देखो, यहां पे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 हो गया। यहां पे क्या निकालना है मेरे को? 2 बॉल निकालना है एट रैंडम, मतलब एक साथ, और सक्सेसिवली एक एक के बाद दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जब मैं पहला बॉल निकालने जा रहा था, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू टेक आउट द फर्स्ट बॉल, हाउ मेनी टोटल बॉल वी हैव? 10। ओके, उसको निकाला, जो भी मेरे पास आया उसको मैंने फेंक दिया, रिप्लेस नहीं किया, उसको वापस नहीं रखा, फेंक दिया। जब मैं दूसरा बॉल निकालने जा रहा था, अब मेरे पास टोटल बॉल कितना है? 9, बिकॉज मैं पहला बॉल निकाल के वापस डाला नहीं हूं, मैंने रिप्लेस नहीं किया है, मैंने इसको बाहर फेंक दिया। ऐसे केसेस में वेयर आफ्टर सक्सेसिव ड्रॉज द टोटल नंबर इज डिक्रीजिंग, जब मैं टोटल नंबर डिक्रीज होता रहता है कंटिन्यूअसली, उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इस केस में हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। So either the question you search for these words or you try to understand the question. If you don't see these words, then you try to search, try to understand the question. क्या मेरे क्वेश्चन में सक्सेसिव ड्रॉज में डिक्रीज हो रहा है टोटल नंबर? अगर हो रहा है तो यू गो फॉर कॉम्बिनेशन। तो इस केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? सो वी आर ड्रॉइंग मोर देन वन आइटम, कंफर्म, एज वेल एज नंबर ऑफ ड्रॉज, सक्सेसिव ड्रॉज के साथ टोटल नंबर डिक्रीज हो रहा है। सो वी आर टू टेक 2 balls out of 10 balls. To 10 balls. So we need to make a pair of 2, 2. 10C2 is the number of sample space. Clear?
अंडरस्टैंड। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या होता है, these three things are not written directly in your book, in your notes. So listen very carefully. If you want, you can wish, you can write, you can add these things in your notes itself. Drawing two balls successively with replacement. अब क्या हो रहा है, यहां भी मोर देन वन आइटम है, तो क्या कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? नहीं। मोर देन वन आइटम कॉम्बिनेशन यूज करने का दो कंडीशन साइड होना चाहिए। पहला, मोर देन वन आइटम, दूसरा ड्रॉस के साथ टोटल नंबर डिक्रीज भी होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, विथ रिप्लेसमेंट। पहला बॉल निकाला, जब मैं पहला बॉल निकाल रहा था, वी हैव टोटल 10 बॉल्स। जो निकाल के फॉर एग्जांपल मेरे पास व्हाइट आया, तो उसको वापस डाल दिया ना मैंने, रिप्लेस कर दिया ना वापस। मतलब मैं जो दूसरा बॉल निकालूंगा तब भी 10 ही रहेगा ना टोटल नंबर, बिकॉज आई एम रिप्लेसिंग द ओल्ड बॉल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरा टोटल नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो तब मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? सो मैंने एक नोट लिखा है, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमें एक एक ड्रॉ का निकालना पड़ता है, तब पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस नहीं होगा। फॉर फर्स्ट ड्रॉ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 10, फॉर सेकेंड ड्रॉ अगेन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 10। दैट मींस यू नीड टू डील लाइक दिस, एक एक करके काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी अलग से निकालना पड़ेगा, सेकेंड ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी अलग से निकालना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू यूज द प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स इन दैट। हाउ टू डू, कैसे करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तब बात करेंगे। क्लियर? अब तुम्हें यह समझना है कि वी कैन नॉट गो फॉर दीज थ्री कॉम्बिनेशंस, तो तब सैंपल स्पेस एक एक ड्रॉ का बात करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ में टोटल नंबर 10 था, सेकंड ड्रॉ में टोटल नंबर 10 था, और टुगेदर इस एक्सपेरिमेंट का कोई सैंपल स्पेस नहीं होगा। क्लियर? ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन, यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस इन probability. Okay, the next thing we need to understand is events. What are events? Events किसको बोलते हैं, कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होता है, किस तरह से निकालेंगे। So I've given few examples also in your book. Okay, so I will not do exactly what is there in the book, in the notes. We'll do something we'll discuss so that you can understand what I have written out there. Okay class, now we'll go for the next part, that is events. Now what are events? We denoted by E. Now event क्या है? हमने पढ़ लिया सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस है कोई भी एक्सपेरिमेंट का सारा आउटकम्स। ओके, अब ये सारे आउटकम्स में हमने क्वेश्चन में कुछ तो पूछा होगा ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 इन टॉसिंग ऑफ अ 2 डाइस। ये जो सम इज 8 है, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है, उसको हम बोलते हैं इवेंट, दैट इज फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या, जो आउटकम मुझे चाहिए। मुझे सारा आउटकम नहीं चाहिए, मुझे उनमें से वो वाला आउटकम चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज एन इवेंट। तो इवेंट किसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन द अदर वे अराउंड, सिंपल वर्ड वी कैन से, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उसको हम इवेंट लेंगे। ओके, मुझे प्रोबेबिलिटी पूछा है सम 8 क्या है, तो ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम 8। हो गया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इवेंट। नाउ ये जो इवेंट है, इसमें जो ये भी एक सेट है, लेकिन ये सेट कौन सा है, वो वाला आउटकम्स जो हमें चाहिए, फेवरेबल, जो हमें फेवर करता है। ओके, दैट मींस इन सैंपल स्पेस में से कुछ आउटकम्स होंगे जो यहां पे होंगे। ओके, उस सैंपल स्पेस में से कुछ आउटकम्स होंगे जो मेरे को फेवर करता है। दैट मींस कैन आई से ई इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस? यस वी कैन से, क्योंकि सैंपल स्पेस से कुछ एलिमेंट्स ई में आ गए, तो ई को मैं सबसेट बोल सकता हूं सैंपल स्पेस का। I hope you understand. Okay. Now let's talk about few examples. In the notes, what example I have given, I don't remember exactly. So मुझे जो दिमाग में अभी आएगा मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ओके, मान लो एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट 1। ओके, मेरे पास एक अर्न है, जिस अर्न में 2 व्हाइट बॉल्स, 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स है। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, 2 टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इसके साथ। एक, ड्रॉइंग अ बॉल, ड्रॉइंग अ बॉल, एक बॉल निकालना है मेरे को। ओके, इस बैग में 2 व्हाइट बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। उसमें से मुझे एक बॉल निकालना है। मान लो दिस इज द क्वेश्चन, एक बॉल मुझे निकालना है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले इस केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 10, बिकॉज वी डीलिंग विद ओनली 1 बॉल। अब इसे मैंने बोला इवेंट, एक इवन में एक इवेंट ले रहा हूं, इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। एक व्हाइट बॉल चाहिए मेरे को, एक ही बॉल निकाल रहा हूं, व्हाइट बॉल चाहिए। तो एन ऑफ इवन क्या होगा, सिंस एक ही बॉल निकाल रहा हूं, टोटल व्हाइट बॉल कितने हैं, 2, सो एन ऑफ इवन ये हो गया। E2 इवेंट
ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, फॉर एग्जाम्पल एक रेड बॉल निकालना है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ E2, हाउ मेनी रेड बॉल्स वी हैव? 3। लेकिन यही अगर ऑन हो और उसमें मेरा एक्सपेरिमेंट अगर चेंज हो जाए, ड्रॉइंग 2 बॉल्स एट रैंडम, अब क्या हो गया? रैंडम वाला केस आ गया, मतलब सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस आ गया, तब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 10C2। अब इसमें बोलूं E1, इवेंट ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, वो जो दो बॉल जो निकाला उसमें से मुझे एक रेड चाहिए था, एक व्हाइट चाहिए था, तब N ऑफ E1 कैसे निकलेगा? वैसे सुनना, अच्छे से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक रेड चाहिए, एक ब्लैक चाहिए, तो रेड बॉल कितने हैं? 3 में से एक रेड चाहिए, 3C1। अब कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा बिकॉज डीलिंग विद मोर देन वन एटम एट रैंडम आल्सो। ओके, अब इसका 3C1 मतलब क्या? 3 रेड बॉल में से एक बॉल निकल गया, क्या मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया? कॉन्सेप्ट विच आई टॉट इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कब इनटू लगता है और कब प्लस लगता है? इनटू कब लगता है? जब मेरा कोई क्वेश्चन, मेरा जॉब खत्म ना हो, and if we are in midway then we multiply it, but if my job is done we make a plus. In simple language we do it in this way. Okay, तो अब मैंने 3C1 निकाला, मतलब क्या 3 रेड बॉल में से एक बॉल निकाला, मैंने एक बॉल निकाल लिया, क्या मेरा जॉब खत्म हो गया? नहीं, मेरे जॉब में 2 बॉल निकाल दिए, मतलब और एक बॉल बाकी है, तो इनटू। अब दूसरा बॉल क्या होना चाहिए? ब्लैक बॉल। तो हम टोटल ब्लैक बॉल्स भी है 5, इनमें से मुझे एक ब्लैक बॉल चाहिए, हो गया। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूं E2, इवेंट ऑफ 2 रेड बॉल्स या 2 व्हाइट बॉल, फॉर एग्जाम्पल मुझे व्हाइट बॉल चाहिए, तो व्हाट इज N ऑफ E2 नाउ? 2 व्हाइट बॉल चाहिए। ओके, तो 2 व्हाइट बॉल, कितने व्हाइट बॉल है मेरे पास? 2 व्हाइट बॉल है, और मुझे 2 व्हाइट बॉल ही चाहिए, तो 2C2, 2 व्हाइट बॉल में से मैंने 2 व्हाइट बॉल चूज कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड क्लास? तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जिसे मैंने इवेंट्स करके दिखाया आपको। सो ओके, अब मैं देखता हूं नोट्स में मैंने और क्या लिखा है, मुझे खुद ही याद नहीं मैंने क्या नोट्स में लिखा है। ओके, सो मैंने और कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया है? ऑन वाला एक्सपेरिमेंट दे दिया मैंने। ओके, अब मैं कार्ड वाला बात करता हूं। चलो कार्ड्स के नेक्स्ट दूसरा एक्सपेरिमेंट बात करते हैं। फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड वी आर ड्रॉइंग 2 कार्ड्स एट रैंडम, 2 कार्ड्स निकालना है। ओके, इससे मैं बोलूं E is the event of getting a face card, getting 2 face cards, और let's थोड़ा बहुत अलग कर लेते हैं। इफ आई से 2 फेस कार्ड करते हैं, बाकी का चालू रहेगा। इवेंट ऑफ गेटिंग 2 फेस कार्ड्स, तो व्हाट इज N ऑफ S हियर? एट रैंडम का बात है, एंड वी आर डीलिंग विथ मोर देन 2 आइटम्स, more than 1 atom, that means 52C2, total number 52, उनमें से मुझे 2 कार्ड निकालना है। What is N of E? फेस कार्ड निकालना, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 4 है 12, तो मुझे 12 में से 2 निकालना है, 12C2। ओके, बिकॉज 3 जैक, किंग एंड क्वीन आर कंसिडर एज फेस कार्ड्स। हार्ट्स के होते हैं, क्लब्स के होते हैं, स्पेड्स के होते हैं, डायमंड्स के होते हैं, तो टोटल 12 हो गए। 12 में से मुझे 2 फेस कार्ड निकालना है। I hope you understand what I'm trying to say, you class. Okay, so this is the small concept about events. तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हें क्या होना चाहिए? तुम जब क्वेश्चंस पढ़ोगे, तुम्हें पता चल गया सैंपल स्पेस कैसे लिखना है, अब इवेंट्स किसको पकड़ोगे? जो तुम्हें निकालना है उसको इवेंट्स लिख दोगे, हो गया, खत्म बात, इन सिंपल लैंग्वेज। ओके क्लास, नाउ लेट्स कंसीडर अबाउट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। नाउ टाइप्स ऑफ इवेंट्स में मैं क्या क्या पढ़ाया हूं नोट्स में, ये ध्यान से सुनो। ओके, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक। पहला, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स किसको बोलते हैं? मैं बोलूं इज अ इवेंट ऑफ रेड कार्ड, देन व्हाट इज ई कॉम्प्लीमेंट? इवेंट नॉट अ रेड कार्ड। अब सुन, यहां पे गलती होती है बच्चों लोग क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्ड्स है, एक है रेड और एक है ब्लैक, ठीक है। कभी कभी बच्चे ऐसे लिखते हैं, इवेंट ऑफ रेड कार्ड, ई कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ब्लैक कार्ड। मत लिखना ऐसा, E event of a red card, E complement event of a black card. No, event of not a red card. Very simple. रेड कार्ड छोड़ के बाकी सब, चाहे ब्लैक हो, व्हाइट हो, येलो हो, ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बस वो रेड कार्ड नहीं होना चाहिए। सो मेक इट वेरी सिंपल।
Red card, not a red card. Red ball, not a red ball. White ball, not a red ball. That's all. If I say not a white ball, that doesn't mean black ball. That means all the other colors which is not a red. Okay, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. सॉरी, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. इसमें तुम्हें एक चीज याद रखना है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के साथ डील करोगे, ठीक है, तो इसका जब तुम यूनियन करोगे वो सैंपल स्पेस आ जाएगा, मतलब सारे चीज आ जाएंगे इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो मैं कार्ड्स के साथ डील कर रहा हूं. मैंने बोला ई इज इवेंट ऑफ रेड कार्ड. व्हाट इज ई कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड कार्ड. तो रेड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? डायमंड के 13 होते हैं, हार्ट के 13 होते हैं, 26 हो गए. और बाकी जो रेड कार्ड नहीं है वो बचे ब्लैक कार्ड, वो भी 26 हो गए. तो जब मैं इसका यूनियन करूंगा, टोटल करूंगा, तो वो पूरा सैंपल स्पेस नहीं आ जाएगा, ऑल द कार्ड्स नहीं आ जाएगा. नेक्स्ट, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूं, इंटरसेक्शन करूं, वो कुछ नहीं आता है, 5 आता है. So these two things you need to understand. Maybe one I have written, one I did not written in the notes. Okay, maybe we won't be used, that's not written. So this is used again. So this you need to understand. कि एक इवेंट हो गया और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का अगर मैं यूनियन करूं तो वो पूरा सैंपल स्पेस आता है. नेक्स्ट, किसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये किसको बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? एक्सक्लूसिव मतलब क्या? डिफरेंट, दैट इज वाइड सेट. अगर याद होगा तुम्हें, नॉट वाइड सेट, डिसजॉइंट सेट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल दो इवेंट्स है E1 एंड E2. इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या? इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन चीज. अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया, 5 आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो एक्सक्लूसिव है, अलग अलग है. इसका मतलब n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होगा क्या? 0. उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. ओके, नेक्स्ट, अगर बोलूं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तब क्या होगा? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब क्या? मतलब दो इवेंट्स है जिसको मैं अगर यूनियन करूं सैंपल स्पेस आता है, समथिंग लाइक दिस. फॉर एग्जांपल, E1 इज इवेंट ऑफ रेड कार्ड एंड E2 इज इवेंट ऑफ ब्लैक कार्ड. अब इफ आई से इंटरसेक्शन, इसका मतलब ऐसा कार्ड जिसमें ब्लैक और रेड दोनों हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं. आइदर कार्ड ब्लैक होगा और ब्लैक रेड होगा. ऐसा कार्ड नहीं है मेरे पास जो ब्लैक और रेड दोनों हो, मतलब उनके कॉमन कुछ नहीं, नो कार्ड्स. सिमिलरली, अगर मैं सारे ब्लैक कार्ड ले लूं, यूनियन कर दूं सारे व्हाइट रेड कार्ड के साथ, तो सारे कार्ड्स को मैं जोड़ दूं तो पूरा 52 कार्ड्स आ जाएगा, सैंपल स्पेस. क्लियर? You understand class? That is mutually exclusive events or mutually exhaustive events. अब ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो दोनों एक साथ हो. सो अगर दोनों एक साथ है तब भी चलेगा. Just now I have given an example. Event of a red card, event of a black card. These two events are exclusive also, exhaustive also. So in those cases, both the conditions will be satisfied. So please try to understand. Events can be exclusive, only exhaustive, exclusive and exhaustive, both all are possible. Okay, now the fourth one is independent events. Now this is a headache for class 12 students. Class 11 students में ये ज्यादा यूज नहीं होगा. It is not in your syllabus, but I am dealing all together because these things you read it again in class 12. Okay, now class 11 students you already studied what I am talking about. Independent events are not is there in class 11, but class 12 students need it very badly. Now what are independent events? Try to understand two events separately. मान लो मेरे पास एक इवेंट है, something is there. I will take the example after some time. E1 is an event and E2 is another event. Okay, we know the chances of occurrence of E1. That means we know probability of E1. From the chances of occurrence of E1, if we cannot predict the chances of occurrence of E2, if we cannot predict the chances of occurrence of E2, then they are independent events. मतलब एक का ऑकरेंस से हम दूसरे के ऑकरेंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो हम बोलते हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ओके, ये तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आएगा, तुम्हें देखना पड़ेगा. लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. ठीक है, आप और मैं दोनों एक सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, एक स्टूडेंट ए
और एक स्टूडेंट बी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, probability that A solve the question is 1/2 and probability that B solve the question is 3/4 for example. ठीक है, A ने सॉल्व कर लिया, उसका प्रोबेबिलिटी 1/2, B ने सॉल्व कर दिया, उसका प्रोबेबिलिटी है 3/2. अब मुझे एक बात बताओ, A अगर सॉल्व कर लिया, इससे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या B सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा या कर लेगा? नहीं. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. मैं सॉल्व कर लिया एक सम को, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि तुम सॉल्व कर सकोगे, या तुमने सॉल्व कर लिया एक सम को, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि मैं भी सॉल्व कर लूंगा. मतलब दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दे आर नॉट मिक्स विद ईच अदर, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. तो इन इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं. सिमिलरली टेक वन मोर एग्जांपल. मैं 3 आदमी हैं, ए बी सी, जो फायर कर रहे हैं टारगेट में. ठीक है, फायरिंग अ टारगेट. प्रोबेबिलिटी दैट ए टारगेट को हिट कर दिया, प्रोबेबिलिटी दैट बी टारगेट को हिट कर दिया, एंड प्रोबेबिलिटी दैट सी टारगेट को हिट कर दिया. ठीक है, देयर आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दैट ए हिट कर गया टारगेट को, बी हिट कर दिया. अब मेरे पास 3 बंदे हैं, मेरे पास आगे टारगेट है, ए ने हिट कर दिया. प्रैक्टिकली सोचना है, ए ने हिट कर दिया. तुम पता कर सकते हो, तुम इमेजिन कर सकते हो कभी हिट करेगा? नहीं. वी आर क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क. वी डोंट नो. बी हिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. मतलब ए पे डिपेंड नहीं करता. ओके, सॉल्विंग अ क्वेश्चन चीटिंग नहीं हो रहा है कि मैं सॉल्व कर लिया तुम भी सॉल्व कर लो, ऐसा थोड़ी होता है. ओके, so these things are independent events. I hope you understand class. What are independent events? What are mutually exclusive events? What are exhaustive events? What are complementary events? And what we can predict from them. Complementary events मतलब क्या होता है? उनके union sample space के बराबर होगा. Exhaustive events मतलब क्या होता है? उनका union. These things are very much required in doing the questions. Okay. Now we will go to the basic. What is probability of an event? अब हम बात करेंगे probability of an event होता क्या है. एकदम क्लास 10 फॉर्मूला के बेसिक से बात करेंगे. ठीक है, क्लास 10 फॉर्मूला के बेसिक से. We are starting the probability from class 10. That means if a student watches this video who is in class 10, he will be getting help from here. If a student watching who is in class 11, he will also get help. Class 12, उसके लिए तो सब कुछ शुरू से स्टार्ट हो जाए, उसके लिए तो बल्ले बल्ले है. Okay, if I say P of E, what's that mean? That means probability of event E. इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई बाय टोटल नंबर. इसको हमने क्लास में पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ओके, बाय टोटल आउटकम. उसी को हम क्लास 11-12 में मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं. बेसिक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम. तो किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस इवेंट का कितना फेवरेबल आउटकम है, कितना आउटकम आ सकता है उस इवेंट के अंदर, वो निकलो, बाय टोटल नंबर निकालो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. दिस इज द बेसिक फॉर्म. नाउ अब यहां पे स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. सी, ये जो ई है ये एक इवेंट है, राइट. ये ई क्या है? एक सेट है. अगर मैं सेट के फॉर्म में बात करूं, ई क्या है? एक सेट है. ये सेट तो 2 अलग अलग सेट का यूनियन हो सकता है, 2 अलग अलग सेट का इंटरसेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, यूनियन भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है. एक सेट का कॉम्प्लीमेंट और दूसरे सेट का इंटरसेक्शन हो सकता है. तो ये इवेंट कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब क्या? अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2? तो ई के जगह मैंने ये लिख दिया है बस. इसका मतलब क्या होगा? n ऑफ E1 यूनियन E2 बाई n ऑफ s. What is probability of E1 intersection E2? इसका मतलब क्या? n of E1 intersection E2 by n of s. तो these are called basic probabilities formulas. Basic probability formula. अगर तुम्हें E1 union E2 का सैंपल स्पेस अगर सेट के फॉर्म में पता है E1 union E2, तो तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो सेट के अंदर. ओके, तब तुम्हें कोई फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है. तो हम इसी क्वेश्चन से, इसी फॉर्मूला से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. ओके, नाउ मैं ऐसा क्यों बताया? क्योंकि व्हेन यू डील विद क्लास 11 and 12, you have a formula. Probability of E1 union E2 is equals to probability of E1 plus
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये अपने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11-12 में, पढ़ेंगे। ओके ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में सेट का फॉर्मूला है। n of A union B is n of A plus n of B. Set is nothing but events only. Sample space is also a set. So everything we can study in form of a set. अब ये फॉर्मूला कब लगाओ, ये फॉर्मूला कब लगाओ, तो जब जो दिया रहेगा उसके सबसे लगाएगी, क्योंकि इस फॉर्मूला से भी और इस फॉर्मूला से भी आंसर तो सेम आने वाला है। द डिफरेंस इज व्हाट, तुम ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो ना जब तुम्हें ये पता हो। जब तुम्हें E1 यूनियन E2 अगर सेट के फॉर्म में पता होगा, then only you can calculate number of elements in that set, and then only you can use formula. And if you don't know, then you have to use this individual formulas. Clear class? I hope you understand what I'm trying to say you. Okay. So you understand when to go for this formula, when to go for this formula. These formulas. These are basic probabilities formulas which we can use. If you don't want to use this formula, we can use this formula also. You will not get a different answer, you will get the same answer. But there is a condition. Do you know E1 union E2 in set format? If you know, use this formula. If you don't know, you should go for this. Okay, now see. हमने types of events पढ़े थे. Complementary events, mutually exclusive, mutually exhaustive, independent पढ़ा था हमने। अब इसका यूज मैथमेटिकली हम कैसे करते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहला, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लूं तो मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में होता क्या है, उनका अगर मैं यूनियन करूं तो पूरा सैंपल स्पेस आता है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1। एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, n of s by n of s। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो E की जगह मैंने s लिख दिया, मतलब s इज अ इवेंट नाउ फॉर मी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट बाय टोटल सैंपल स्पेस, दैट इज 1। क्योंकि इनका टोटल करने से सैंपल स्पेस आता है। ओके, मतलब क्या, मतलब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट, दिस थिंग्स विल बी यूज्ड इन एग्जाम, ओके, इन क्वेश्चंस। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इस दोनों इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो कितना होगा, 0। कैसे? एक्सक्लूसिव है मतलब उसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला ये रहा, E1 इंटरसेक्शन E2, n of E1 इंटरसेक्शन E2 by n of s। n of E1 इंटरसेक्शन E2 कुछ नहीं है, 0, 0 by something is 0। ओके, तीसरा, अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, मतलब E1 यूनियन E2 1 होगा। कैसे? अगर एग्जॉस्टिव है तो इनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस यूनियन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सैंपल स्पेस। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाओ, n of E1 यूनियन E2 की जगह में we can write n of s by n of s। n of s and n of s will cancel out and we'll get 1। okay, so what is the use of it? So when we know two events are mutually exclusive, then what will happen to this formula? This formula will be converting into E1 union E2 will be equals to probability of E1 plus probability of E2 minus 0. So these things will be used in questions. Okay. Similarly, अगर बोल दिया exhaustive है, that means what? 1 will be equals to probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2. Okay, class. Next. So what I'm doing, I'm just using the same formula and putting these conditions out there. This you need to understand. Don't start mugging up. रट्टा मत मारने पड़ता है कि ऐसे केस में ऐसा होगा, ऐसे केस में ऐसा होगा. Don't mug up. We know exclusive मतलब intersection 0. कुछ कॉमन नहीं है, मतलब उसका probability 0 होगा. Use that condition here. Intersection का probability 0 होगा. We know exhaustive मतलब union sample space होता है, सब कुछ मिल जाता है. Okay, मतलब probability of union will be 1. And use this condition here. Now तीसरा, fourth केस क्या होगा? Mutually exclusive and exhaustive
दोनों है, इसका मतलब 1 विल बी इक्वल टू पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2। एक्सक्लूसिव है मतलब इंटरसेक्शन 0 होगा, एग्जॉस्टिव है मतलब यूनियन 1 होगा, तो इनका सम 1 होगा। क्लियर? नाउ द फिफ्थ केस विच इज नॉट इन क्लास लेवल, you will not face the question of this type, whatever I'm trying to discuss right now. Okay, independent events. अगर मैं बोलूं E is an independent event, if I say E1 is an independent event, E ले लो E1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसका इंटरसेक्शन भी इंडिपेंडेंट ही होता है। पहला चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। If E1 is an independent event, then E1 intersection, E1 not intersection, complement. E1 complement is also an independent event. Okay. Now, whenever two events are independent, then उनके बीच का जो intersection होता है, वो simply multiply करने से आ जाता है। Only this concept you need to understand. This formula is valid only if these two events are independent. Similarly, if I say E1 and E2 are independent events, then we can say E1 complement and E2 complement are also independent events. So E1 intersection E2 complement. Don't worry about the complements and all. Independent है, इनके बीच का intersection में क्या हो जाएगा? into में पलट जाएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं है। ओके, सिंपली इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? into में पलट जाएगा, like this. This is the basic thing we need to understand. Okay, class? Okay, class. Now you have to understand some practical applications of union and intersection. ठीक है, हमने फॉर्मुलास पढ़ लिया, हमने बेसिक सैंपल्स पे समझ लिया, हमने इवेंट्स पढ़ लिया, और ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा, सारे नोट्स एक साथ होना चाहिए, पूरा थ्योरी एक साथ होना चाहिए। अब तुम जो यूनियन और इंटरसेक्शन है, जो कि हम सेट्स के फॉर्म में तो हम समझते हैं, यूनियन मतलब दोनों सेट्स का सब कुछ लेना है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट्स का कॉमन लेना है। ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में कैसे लगाएं, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सी, नोट्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम यहां भी बात करेंगे। इफ आई से E1 यूनियन E2, इसका मतलब क्या होता है? और इफ आई से E1 इंटरसेक्शन E2, इसका मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में और वर्ड दिखे या एटलीस्ट दिखे, मतलब यूनियन करना है। दीज आर सम कीवर्ड्स व्हिच यू कैन फाइंड इन द क्वेश्चंस। Okay, for example, find the probability of a red card or a black card. तो और लिखा है, तो एक रेड चाहिए, एक ब्लैक चाहिए। तो E1 क्या होगा? गेटिंग अ रेड कार्ड। E2 क्या होगा? गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। इनका यूनियन निकालना है, क्योंकि इनके बीच में और लिखा है। एटलीस्ट लिखा होगा मतलब यूनियन निकालना है। ये हुआ बेसिक की स्ट्रक्चर। और इंटरसेक्शन मतलब एंड निकालना है, रेड कार्ड एंड अ ब्लैक कार्ड। तो एंड हो गया मतलब इंटरसेक्शन हो गया। तो ये तो हुआ कीवर्ड्स। इफ यू सी इन द क्वेश्चन, बल्ले बल्ले। But there are few questions जहां पे ये keywords नहीं होंगे बेटा। Then you have to think practically कि यूनियन मतलब क्या होता है, एंड मतलब क्या होता है। तो सुनो, E1 E2 और मतलब क्या है? Let's first we understand this. इसका मतलब क्या? E1 getting a red card, E2 getting a black card. For example, रेड कार्ड मिला, ब्लैक कार्ड नहीं मिला, रेड कार्ड नहीं मिला, ब्लैक कार्ड मिला, रेड कार्ड भी मिला, ब्लैक कार्ड भी मिला। दिस ऑल आर कॉल्ड एज और मतलब क्या? ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, एक पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबल है, एक पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबल है। मतलब रेड और ब्लैक कार्ड चाहिए, मतलब या तो सिर्फ रेड कार्ड निकले, ब्लैक कार्ड नहीं निकलेगा, चलेगा, या ब्लैक कार्ड निकले, रेड कार्ड नहीं निकले, तब भी चलेगा, ब्लैक और रेड कार्ड दोनों निकले, तब भी चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब मुझे कुछ भी आ रहा है, बस एटलीस्ट रेड और ब्लैक में से कुछ भी आ रहा है, दोनों मिल गया तो बल्ले बल्ले, अगर कुछ भी आ गया तब भी चलेगा, एक मिले तो एक ना मिले तब भी चलेगा, दैट इज कॉल्ड यूनियन। लेकिन इफ आई से इंटरसेक्शन, तब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब क्या? रेड भी चाहिए एंड ब्लैक भी चाहिए, दोनों साथ में चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अगर कोई भी एक नहीं मिला तो जॉब नहीं होगा। टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन द बुक, इन द नोट्स। लेट्स टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस हियर। ओके, नाउ mostly those questions will not be covered in class levels. Why? Because doing those questions we need the concept of independent event, और independent event तो हमारे क्लास लेवल में नहीं है। ओके, तो हमें क्लास लेवल में इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, मोस्ट प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है,
मोस्टली क्वेश्चन सिंपल वाले आते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. The first example. I don't know what example the first example is in the notes. Let me discuss here. For example, A, B and C hits a target. Okay. If I say E is the event, target is hit. Target is hit. Target hit हो गया. अब मान लो इसका मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है. अब तुम सोचो, 3 बंदे टारगेट को हिट कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? फेवरेबल आउटकम क्या है? टारगेट हिट होना चाहिए. तो क्वेश्चन में बोल रहा है टारगेट हिट होना चाहिए. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ए हिट किया, बी और सी ने भी हिट किया, टारगेट हिट हुआ. पहला केस. मान लो ए हिट, बी हिट, सी हिट. ए ने हिट किया, बी ने हिट किया, सी ने हिट किया, टारगेट हिट तो हुआ. ए ने किया, बी ने किया, सी ने नहीं किया. बी ने किया, सी ने किया, ए ने नहीं किया. ए ने किया, सी ने किया, बी ने नहीं किया, तब भी टारगेट हिट हुआ. ए ने किया, बी और सी ने नहीं किया. बी ने किया, ए और सी ने नहीं किया. सी ने हिट किया, ए और बी ने हिट नहीं किया, तब भी टारगेट हिट हुआ. और ऑल द केसेस टारगेट तो हिट हो ही रहा है ना. दैट मीन्स कोई एक भी करे तब भी चलेगा. इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, टारगेट हिट बाय ए और बी और सी सब चलेगा. और मतलब क्या? एटलीस्ट एक हिट किया, एक नहीं किया, दोनों ने हिट किया, एक नहीं किया, तीनों ने हिट किया, दैट इज कॉल्ड टारगेट हिट. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो ये यूनियन वाला कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आता है. एटलीस्ट हिट किया मतलब कोई भी हिट करने से चलेगा ना मेरे को. मतलब एटलीस्ट एनीवन कैन हिट द टारगेट, दैट मींस यूनियन. क्लियर? नाउ व्हेनेवर यू फेस अ क्वेश्चन ऑफ 3 इवेंट्स यूनियन, 3 इवेंट्स यूनियन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. इवेंट, टारगेट, नॉट हिट. अब नॉट हिट मतलब क्या? ए कॉम्प्लीमेंट, टारगेट हिट नहीं किया ए ने, एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट. अब यहां पे स्टूडेंट एक कंफ्यूजन करता है. क्या? देखिए ना, अगर ऐसा लिखे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या? और मतलब ए ने हिट नहीं किया, या तो बी ने हिट नहीं किया, या तो सी ने हिट नहीं किया. इसका मतलब ए ने हिट नहीं किया, बी हिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. सी ने हिट क्योंकि और लिखा है तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. लेकिन मेरे को तो अभी हिट नहीं करवाना है, मतलब एंड होगा. डू यू अंडरस्टैंड? तो हम क्या करेंगे? यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. अब दिस हिटिंग अ टारगेट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली क्या कर सकता हूं? सिंस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये इंटरसेक्शन इनटू में पलट जाएगा. ठीक है, यहां से मुझे नॉट हिट मिल गया. तो हाउ टू फाइंड हिट? सो वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंपोनेंट इज 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट. ठीक है, प्लस ये हुआ एक एग्जांपल. दूसरा, मान लो मैंने बोला ई इज द इवेंट टारगेट हिट बाय मेजोरिटी. ये थोड़ा बुक से नोट से अलग करा. नोट्स में मैंने बोला है टारगेट हिट बाय मैक्सिमम 2, एटमोस्ट 2. ओके, मैक्सिमम 2 या एटलीस्ट एग्जैक्टली बाय 2 पर्संस. बहुत सारे इवेंट्स आ सकते हैं. मैंने क्या बोला? टारगेट हिट बाय मेजोरिटी. इसका मतलब क्या? इन क्वेश्चंस को मैं कैसे करूं? मेजोरिटी ने हिट किया टारगेट को, ए ने हिट किया. मेजोरिटी मतलब 3 में से मेजोरिटी मतलब क्या? 2. तो ए ने हिट किया एंड बी ने हिट किया, सी ने नहीं किया. जॉब इज डन. प्लस तीनों ने हिट कर लिया है, काम हो गया. तीनों ने फायर कर लिया, हिट किया नहीं किया बात का बात है. तीनों का फायरिंग खत्म, जॉब इज डन. अब नेक्स्ट तरीका, ए ने हिट नहीं किया, बी ने हिट किया, सी ने हिट किया. नेक्स्ट तरीका, ए ने हिट किया, बी ने नहीं किया, ए ने नहीं किया, सी ने हिट किया. तो इसने सी ने हिट नहीं किया, इसने ए में हिट नहीं किया, इसने बी ने हिट नहीं किया. नेक्स्ट, तीनों ने हिट किया, दैट इज ऑल्सो मेजोरिटी. So try, you need to understand, when more and more practice of questions you will do, then you will understand these things, thinking process. तो मेजोरिटी हिट कर रहा है, इसका मतलब क्या? 2 हिट करेगा या तो 3 हिट करेगा, एक जन हिट नहीं करेगा. तो वो एक जन एक बार सी को हिट नहीं करवाया, एक जन बी ने हिट नहीं किया, एक बार ए ने हिट नहीं किया. अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस.
अब ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, हिटिंग ऑफ अ टारगेट, तो ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटू में पलट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट प्लस probability of A complement into probability of B into probability of C and so on. I hope you understand class. About union and intersection, there are few more I have in the notes. ये तो हिटिंग वाला मैंने करवा दिया, और कौन सा था मेरे नोट्स में? ओके, दूसरा था 2 person solving a question. ओके, मैं बुक से पढ़ ले रहा, आई डोंट राइट अगेन अगेन. 2 person एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. That E1 is an event question solved by first person, E2 is an event question solved by second person. अब मैं यहां पे event बोला, E is an event that question is solved. तो question is solved बोल दिया, ठीक है. इसका मतलब क्या? मतलब कोई भी सॉल्व करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सॉल्व करे या किसी एक बंदा सॉल्व करे दूसरा बंदा सॉल्व ना करे. इसका मतलब क्या? यूनियन. तब में E equals to, we can say E1 union E2. Okay, so मतलब probability of E will be equals to what? Probability of E1 union E2. इसका तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, P of E1 plus P of E2 minus P of E1 intersection E2. ओके, नहीं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है. यूनियन निकालना है तो तुम क्या करो, कॉम्प्लीमेंट निकालो. नॉट सॉल्व मतलब फर्स्ट पर्सन ने भी सॉल्व नहीं किया एंड सेकेंड पर्सन ने भी सॉल्व नहीं किया. ओके, लेकिन ये वाला मेथड में तभी यूज कर सकता हूं जब मेरा जो क्वेश्चन हो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो. अगर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी तुम निकाल नहीं पाओगे. इनटू नहीं कर, दिस इंटरसेक्शन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इनटू ना, दिस इंटरसेक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनटू ओनली इफ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इफ यू गो टू क्लास 11 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस किए हुए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे किए हुए, वो क्वेश्चंस में वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. वो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा क्या मेरा कंडीशन इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सॉल्विंग अ क्वेश्चन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एक सॉल्व कर पा रहा है दूसरा नहीं कर पा रहा है. हिटिंग अ टारगेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, डू यू अंडरस्टैंड क्लास? ओके, नाउ दिस आर ऑल इंडिपेंडेंट. अब इसी में और एक क्वेश्चन हम बात करते हैं, ये तो बुक्स में था, नोट्स में है, विच यू कैन स्टडी फ्रॉम द नोट्स. अब मैं अगर दूसरा कोई इवेंट बोलूं, E is the event question solved by exactly one of them. सिर्फ एक बच्चे ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, दूसरा बच्चा नहीं कर पाया, तो क्या? फर्स्ट पर्सन ने सॉल्व किया एंड सेकंड पर्सन ने नहीं किया, प्लस फर्स्ट पर्सन नहीं कर पाया एंड सेकंड पर्सन किया. इसमें क्या हुआ? एग्जैक्टली एक जन सॉल्व कर पाया. ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. ये कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट. ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो देयर इज नो वरी अबाउट इट, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. क्लियर क्लास? ओके, now there are two special ratios we come across while doing a particular sum. Let's discuss about those special ratios. Okay, कुछ स्पेशल रेशियोज होते हैं. क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा होता है, odds in favor of E. फेवर ये एक रेशियो है, m/n. तो बेसिक ये समझना है, अगर फेवर है तो ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा. अगर फेवर है ऊपर वाला मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकरिंग, नीचे वाला मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट नॉट ऑकरिंग. यही अगर ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ईओ, तो अगर अगेंस्ट है तो ऊपर वाला क्या होगा, नॉट ऑकरिंग, और नीचे वाला ऑकरिंग. तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस निकालना है, ई इवेंट ऑकर करे, इसका प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर. इस केस में m इज द नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर बाय टोटल नंबर, कितने बार पॉसिबिलिटी है. इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर. तो ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट में नीचे वाला नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर होता है, मतलब n बाय m प्लस है. ये समझ में आ रहा है? ओके, अब प्रोबेबिलिटी ई निकल गया तो ई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर लो, या तो ई कॉम्प्लीमेंट मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट नॉट ऑकर बाय टोटल. यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, आई विल गो फॉर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और या तो नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट नॉट ऑकर
अगेंस्ट है मतलब ऊपर वाला नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट नॉट अकर बाय टोटल। ओके, सो फेवर हुआ देन ऊपर वाला होगा नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर, नीचे वाला नॉट ऑकर। क्लियर? ये हुआ रेशियो से प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, रेशियो से प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। दूसरा है प्रोबेबिलिटी से रेशियो निकालने का तरीका। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ बिग इशू। You only have to remember the formulas and the idea. Don't muck up the formula like a parrot. Then you cannot apply your concepts. Apply नहीं कर पाओगे बेटा. Okay? So see, मैं बोलूं probability of E given है आपको, तो you can calculate probability of E complement on your own. 1 minus probability of E. Calculate तो कर सकते हो. अब कोई बोला odds in favor निकालो. फेवर मतलब क्या है? ऑकरेंस होगा तो ऊपर में ऑकरेंस होने का प्रोबेबिलिटी, नीचे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। अगर बोला ऑड्स अगेंस्ट निकालो मतलब ऊपर में नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट, नीचे प्रोबेबिलिटी होने का, बस दैट्स ऑल। ओके क्लास, नाउ दिस इज द एंड ऑफ क्लास 11 बेसिक्स। ओके, दैट्स ऑल क्लास, थैंक यू वेरी मच।